आज हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स, अयोर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। ब्लड वेसल जो हमारे पास है वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से, जो दिल से खून ली जाता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है फ्रॉम द हार्ट। वेन इसके अपोजिट है, वेन आर दोज ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द हार्ट। वेन इसके अपोजिट है, वेन वो ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड को ले जाता है हार्ट की तरफ। और कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये आर्टरी है, इसके बाद जो ये फर्दर डिवाइड होंगे स्मॉल वेसल्स में, उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। और ये वेन है जो ये स्मॉल में फर्दर डिवाइड होंगे स्मॉल ब्रांचेस में, उसको हम कहते हैं वेन्यूल्स। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है जो न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ओके, फर्दर हम इसको फिर फाइनल एक आर्गन में हम लिखेंगे कि कैपिलरीज में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है अयोर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। अयोर्टा जो है वो एराइज होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। लेट्स सपोज दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज होता है। जब ये अयोर्टा राइज हो जाए फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट से, तो यहाँ से इसके 2 ब्रांचेस है विच सप्लाई टू द हार्ट। ये ब्रांचेस हार्ट की तरफ चले जाते हैं, इसके फिर फर्दर ब्रांचेस है। सो दिस आर्टरी इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। इनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, हार्ट की तरफ जाएंगे ये। दिस इज द aorta, it's the part, this is the ascending aorta, this is the arch of aorta, this is the descending thoracic aorta, and this is the abdominal aorta. Okay, so it's the branch of the ascending aorta. Coronary artery is the first branch of the aorta, ascending aorta. The next branch, this is called the brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery is further divided into 2. So this is the trunk which is called the brachiocephalic trunk. When it divides into 2, this branch goes toward the arm, to the hand, and this branch goes toward the head and neck region. So this is the brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery. This is the brachiocephalic trunk. This branch, this is the right subclavian, right subclavian artery. This branch, this is the right common carotid artery, right common carotid artery. The right common carotid is divided further into 2 branches. Yes, this is the external carotid artery, which supply to the facial region, to the facial muscle, and this is the internal carotid artery which supply to the brain. Okay, so it's the first branch of the ascending aorta, the brachiocephalic artery. The subclavian artery, it is the brachiocephalic trunk. This is the common carotid, the external carotid and internal carotid artery. Okay, right common carotid. अच्छा, नेक्स्ट जो आर्च का ब्रांच है, दिस इज द आर्च ऑफ अयोर्टा। आर्च ऑफ अयोर्टा का जो ब्रांच है, डायरेक्ट ब्रांच है, विच इज कॉल्ड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दिस इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. It also like this divide into 2 branches. Yes, external carotid artery and internal carotid artery.
This is the right and this is the left. This is the left common carotid, this is the left external, and this is the left internal artery. The other branch, the direct branch from the arch, this is called the left subclavian artery. The left subclavian artery direct goes toward down to the shoulder region, to the arm, forearm, and to the hand, etc. Okay, so this is the subclavian. This is the right subclavian, and this is the left subclavian artery. Left subclavian artery. The left subclavian artery give further small branches to the axilla. This is called axillary artery. Axillary artery give branch to the deltoid muscle, which is called deltoid artery. Deltoid artery. This branch, this is called the brachial artery. Brachial artery. Here the brachial artery is divided into two. This is the cuboidal artery, this one. This is the ulnar and radial artery, which supply to the ulna and radius bone and to the muscles. The radial artery, ulnar artery. Finally at the rest joint पे ये जो आर्टरी है ये अब आर्च बनाएंगे. सो दिस इज द आर्च. यहाँ पे लाइक दिस एक आर्च बनेगा विच इज कॉल्ड दिस इज द आर्च which is called the deep Falmer arch. Deep Falmer arch इधर बनेगा. Deep Falmer arch. उसके बाद एक और आर्च बनेगा Falmer region में which is called the superficial Falmer arch. This is the superficial Falmer arch. And finally the blood vessels goes to the finger which is called digital artery. This is the superficial Falmer arch and this is the digital artery. Digital artery. So this is the blood supply from the arch to the body organ. Once again मैं इसको revise करूँ. The aorta arises from the left ventricle. It give two branches from ascending aorta, which is the right and left coronary artery. The other branch from the arch, this is called the brachiocephalic artery. This is the brachiocephalic trunk. The brachiocephalic trunk is divided into two. One goes toward the head region and one toward the upper arm. Okay, so this is the subclavian artery. Subclavian artery is further divided like this. Okay, this is the right common carotid artery. The right common carotid artery is further divided into two, the right external and right internal carotid artery, and this is the left common carotid artery. It also divided into two, the external and internal carotid artery. This is the left subclavian artery. So it is the branch of the arch of aorta, and this is the thoracic aorta. It's also have branches, and this is the abdominal aorta. Okay. Acha. This is the diaphragm. ये हमारे पास diaphragm है जो मैंने black बनाया. This is the descending aorta. जब descending aorta diaphragm के नीचे down हो जाए तो इसका नाम change होगा. This is the abdominal aorta. वही vessels है, वही tube है, लेकिन इसका नाम diaphragm के नीचे कुछ और है. This is called abdominal aorta. तो abdominal aorta को मैंने इधर बनाया. This is the diaphragm and this is opening is called aortic opening. Diaphragm में हमारे पास तीन opening है. This is the aortic opening, caval opening है हमारे पास and esophageal opening. इसको हम aortic hiatus भी कहते हैं, caval hiatus and esophageal hiatus. Abdominal aorta इसकी further branches है. ये जो मैंने बनाए हैं this is the front branches which is the interior branch. aorta के interior branch भी है like this, इसके पीछे भी है, posterior branch भी है और side पे भी है.
ये इंटीरियर ब्रांच है, जो पहला ब्रांच है, दिस इज द कॉल्ड सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक, दिस इज द स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एक ब्रांच है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो इट्स द सीलिएक ट्रंक। Celiac trunk, it's the interior branch of abdominal aorta, which gave further branches to the it's the short gastric artery, this is the splenic artery, and this is the common hepatic artery. The short gastric artery supply to the fundus of the stomach, this branch splenic artery supply to the spleen, and common hepatic artery supply to the liver. Okay, this branch, this is the superior mesenteric artery, and this is the inferior mesenteric artery. Superior mesenteric artery, and this is the inferior mesenteric artery. Superior and inferior mesenteric artery is the branch of interior abdominal aorta. It supplied to the small and large intestine. Okay, next जो branch है lateral branch, साइडों पे इसके ब्रांच है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा। सो दिस इज द राइट रीनल एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट जो किडनी को सप्लाई करेंगे, राइट एंड लेफ्ट, राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। गोनेडल आर्टरी जो गोनीड्स को सप्लाई करेंगे। फीमेल में यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी जो ओवरीज को फीमेल में सप्लाई करेंगे, और मेल में गोनीड्स को टेस्टिकुलर आर्टरी। देन प्यूबिक रीजन पे, दिस इज एब्डोमिनल अयोटा, इसकी पोस्टीरियर भी ब्रांच है। दिस इज़ द इंटीरियर ब्रांच, दिस इज़ द लेटरल ब्रांच। पोस्टीरियर जो ब्रांच है वो बोर्ड पे मैं तो बना ही नहीं सकता। पोस्टीरियरली हमारे पास है दी कॉस्टल आर्टरी, सैक्रल आर्टरी, लंबर आर्टरी, वो हमारे पास पीछे पड़े हैं एब्डोमिनल अयोटा। देन प्यूबिक रीजन पे, दिस इज़ द प्यूबिक रीजन, यहाँ पे ये एब्डोमिनल अयोटा दो में डिवाइड होंगे। दिस इज़ द कॉमन इलिक आर्टरी, दिस इज़ द राइट एंड लेफ्ट इलिक आर्टरी। Right and left iliac artery further give branches to external iliac artery and internal iliac artery. External and internal iliac artery. Then it goes down to the thigh. This is called the femoral artery. Then femoral artery के बाद patellar artery. फिर पेटिला में नी जॉइंट में ये दो में डिवाइड होंगे, the tibial and fabular artery. उसके बाद dorsal fetus artery. उसके बाद जो कल्कीनियल आर्टरी, कल्कीनियस में जाएंगे, फिर सेम जो है डिजिटोरियम आर्टरी, और सारे फुट में वो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, एब्डोमेन अयोटा के सुपरफिशियली इंफीरियर वेना केवा पड़ा है। ओके, ये सारे वेन्स है, तो इंफीरियर वेना केवा में ब्लड आ जाएगी ऊपर लाइक दिस। ठीक है, पूरी हार्ट की तरफ जाएगी, एंड यहाँ पे दिस इज़ द आर्टरी। लेट्स सपोज दिस इज़ द रीनल आर्टरी, ये मैंने रीनल आर्टरी बनाया, रीनल आर्टरी। अब हार्ट से ब्लड आ गई, लेट्स सपोज दिस इज द एब्डोमिनल अयोटा। ओके, दिस इज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, जब आर्टरी फाइनली ये आर्ट्रियोल्स में जाएगी, ये जो मैंने स्मॉल बनाई, दिस इज द आर्ट्रियोल्स, दिस इज द आर्टरी, ये लार्जेस्ट है, एंड दिस इज द स्मॉल, दिस इज द आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल्स के बाद जो ये मैंने ग्रीन, दिस इज द कैपिलरीज, ये ब्लड जो है कैपिलरीज लेवल पे आ जाएगी। कैपिलरीज में जो है ओनली वन रेड ब्लड सेल जो है वो ट्रेवल करता है, तो कैपिलरी में ये ब्लड यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, मींस कि यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज होगा सारा, और जो ब्लड रह गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्यूल्स की तरफ जाएगी, वो इस तरह वेन्यूल्स के बाद वो वेन में आ जाएगी, वीना केवा द लार्जेस्ट, वीना केवा फिर चली जाएगी टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। आ गई समझ? सो कैपिलरी में जो है वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होंगी टू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। आ गई समझ? जो ब्लड, क्योंकि कैपिलरीज इज़ द माइक्रोस्कोपिक, उसमें ओनली वन रेड ब्लड सेल जो है वो
पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर भी मटेरियल्स, बाहर भी न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं सेल के बीच में, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि वो सेल्स के बीच में वो फ्लूइड रहते हैं। तो फिर ये जो मैंने बनाए हैं, दिस इज़ दी लिम्ब कैपिलरीज। अब लिम्ब कैपिलरीज का क्या काम है कि इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा और लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल में हार्ट की तरफ ले जाएगा, खून में शामिल करेगा इसको। तो ये जो ब्लड है, दिस इज़ दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये कैपिलरीज इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये सारा फ्लूइड यहाँ पे आएगा, दिस इज़ दी लिम्फेटिक फ्लूइड। अब ये लिम्फेटिक फ्लूइड बन गया, ये आगे जाएगा, यहाँ पे नोड्स हमारे पास लगे हुए हैं, चेक पॉइंट है, वो इसको फिल्टर करेगा और एंटीबॉडीज़ बनाएगा। फिर उसके बाद थोरैसिक डक्ट में जाएगा, उसके बाद जो है ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, देन इनटू द हार्ट। फिर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये भी साथ खून में शामिल हो जाएगा, ठीक है।